Hello, dear students. Today I'm going to start with the topic of transformers. And transformers are basically single phase transformers and three phase transformers. They can be classified as this. Most of the times that the transformers that we see outside our home are three phase transformers. But in this course, as this is a basic course of electrical engineering, so we are just going to concentrate on single phase transformers. What is the concept, what is the principle behind this operation of this device? So to begin with, the operation of transformer basically depends on two laws that are known as the Faraday's laws of electromagnetism. And we know that what are the Faraday's laws of electromagnetism. The first one, I should write it like this: Faraday's laws of electromagnetism. Okay, so the first law says that whenever there is a change in the magnetic flux linkage in a circuit, a voltage is induced in it. Okay, it says that whenever there is a change in the magnetic flux linkage in a circuit, a voltage is induced in it. It means that if we are having a circuit, by circuit we mean a coil, and a flux links with this coil. So, and this flux is somehow changing in nature. It is changing with time. Then what will happen? A voltage will be induced across this coil. Okay. And second thing, it talks about the magnitude. What should be this magnitude, or the magnitude of this voltage? The magnitude of this voltage must be directly proportional to the rate of change of the flux linkage. Okay. So, for example, if you take that this coil is made up of N turns, then we can say that the EMF that is induced, I should rub this off over here and write it like E. Okay, so it will be directly proportional to rate of change. By rate we mean it will with respect to time. And what should be the flux linkage? What do we mean by flux linkage? It is, the flux is phi, this flux was phi that was linking with this coil, and there are N turns. So N turns के साथ ये flux link कर रहा है, तो जिस हिसाब से या जिस rate of change के साथ ये flux linkage करेगा, that will, this EMF will be proportional to this. And in SI units, the constant that should come over there will be 1. So it will be directly equal to, or I can write it like this, N phi. What is this? Sometimes it is denoted by lambda also. So we can also write it like this, d by dt of lambda. So what is lambda? It is the flux linking the coil of N turns. Okay. Now there is another law that is also known as the Lenz's law. Lenz's law. And it states that the polarity of this induced voltage, ये जो voltage induce हुआ है वो ये कहता है, हिंदी में अगर सरल भाषा में हम समझे,
कि ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है इसके अंदर वो ऐसा होगा कि जो इसका सोर्स बना है उसको वो अपोज करेगा. So a minus sign will come. So EMF that will be induced will be equal to minus d by dt of n phi. So these are the basic equations of Faraday's law and the Lenz's law on which the principle of operation of transformer is based. So to begin with, we should start the discussion on what is a transformer basically. So a transformer is a static device. It does not have any moving parts, which consists of two or more stationary electrical circuits interlinked by a common magnetic circuit for the purpose of transferring electrical energy between them. अभी तक आपने जो सर्किट्स देखे थे, मैग्नेटिक सर्किट्स की बात कर रहा हूं. In the previous lectures we were dealing with the magnetic circuits, and we had seen that we were having one coil, and when we energize that coil through some source, then a flux is developed inside that magnetic circuit. Similar circuit is over here. ये जो magnetic circuit की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, this magnetic circuit is the same circuit that, and we are linking, because this magnetic circuit is a circuit of flux, okay, and we are linking two or more electrical circuits, two or more stationary electrical circuits through a common magnetic circuit. Another difference, जो पहले मैग्नेटिक सर्किट देख रहे थे और इसमें क्या है कि जो सोर्स होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस, ओके, somewhat like this, ऐसी था मैग्नेटिक सर्किट अपने देखा था, एंड वी वर हैविंग लाइक दिस सम कॉइल, ओके. तो यहां पे earlier I was taking certain DC quantity और DC current यहाँ पे flow करता था, some DC current. Now what I am doing is I am replacing this by certain AC quantity, alternating quantity. Now if I am placing some alternating quantity over here, तो current जो flow करेगा इस path में, that will be also be changing with time, and सिमिलरली एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस, इसी की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस n इंटू आई की वजह से, तो ये फ्लक्स भी चेंजिंग विद टाइम होगा, राइट. दैट मीन्स इफ आई राइट इट लाइक दिस, इफ दिस करंट ओवर हियर, इफ दिस करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो ये जो फ्लक्स यहां पे डेवलप होगा, ठीक है, phi, it should be a function of time and it should be phi m sin of omega t, right. तो ये फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगी, ठीक है. तो फिर से पढ़ रहा हूं. अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंटरलिंक्ड बाय अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ अभी हम यहां पे देख रहे हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, okay. Now if I am having another electrical circuit, for example, let me choose another color, I am taking some red color over here, और मैं दूसरी साइड पे यहां पे एक ऐसे दूसरा सर्किट ले लूं, या इस साइड पे तीसरा सर्किट ले लूं, तो ये जो फ्लक्स यहां पे जनरेट हो रहा है, दिस फ्लक्स विल लिंक दीज कॉइल्स, राइट, एंड दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, राइट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बोल रही है हमारे पास, जो फैराडेज के लॉ बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दीज पाथ्स, ओके, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस पाथ्स. अब मैं इस सर्किट के अक्रॉस कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह लगाऊंगा तो अ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. So the transfer of energy from one circuit to another takes place without a change in frequency. This is another statement. ये अलग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है. Now we see over here, this is a electrical circuit, this is another electrical circuit, और इसके जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, वो किसके माध्यम से हो रहा है, दैट इज ट्रांसफरिंग थ्रू मैग्नेटिक सर्किट। ओके, यहां पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर भी हमारे पास 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी। तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस will be what? It will be without a change in frequency. It will be without a change in frequency. So what will change? The question is what will change? Why are we using the transformer? We are using this transformer to get voltages of different magnitude. For example, if I am having a voltage over here, यहाँ पे जो voltage है उसकी RMS value V है और V1 है, we will obtain V2 over here. वो डिपेंड करेगा what is the ratio between these turns, या इस वाइंडिंग के टर्न्स और इस वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में क्या रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज N1, दिस इज N2, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन N1 एंड N2, दिस विल कम लेटर ऑन। ठीक है, कि ये कितना टर्न रेशियो है और ये वोल्टेज कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में। Okay, so what we will be achieving? We will be achieving a step up voltage और step down voltage। या तो ये voltage जो हमें यहाँ पे मिल रहा है that will be lower than this voltage और it will be higher than this voltage। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो इनपुट साइड पे पावर होगी वही आउटपुट साइड पे पावर होगी। तो that means that if this circuit is acting as a step up transformer, वोल्टेज के टर्म्स में बात कर रहा हूं, if voltage is stepping up, वोल्टेज राइज कर रहा है तो करंट फॉल करेगा। ठीक है, अगर मैं I1 को I2 से कंपेयर कराऊंगा और V1 और V2 को कंपेयर कराऊंगा, V2 is more, if V2 is more than V1 then I2 will be less than I1 and vice versa। ठीक है, now this benefit that we are achieving in rising the voltage or falling the voltage can be utilized in certain applications. Most of the times we utilize in, of course you have seen so many transformers, and electrical engineering के अंदर हम transformers का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो बताएंगे अभी। It can rise or lower the voltage, the level of voltage or current। ठीक है, when voltage increases current decreases and vice versa as P is equal to V into I and power is fixed in an AC circuit। ठीक है, ये बात अभी मैंने डिस्कस करी थी। It can isolate two electrical circuits electrically। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने दोनों के बीच में क्या कर दिया, आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया कि इसका करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, तो आइसोलेट हो गए नहीं हो गए, एंड दी फ्लक्स इज बिकमिंग द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, for example it step up the level of voltage at the generation side before transmission and at distribution side for commercial or domestic use of electricity। transformer step down the level of voltage, for example from 11 kV to 220 volt single phase and 440 volt थ्री फेज। अब इतनी लंबी कहानी कहने के बाद आप पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन सिंपल से मैं बात करता हूं। आप लोग अलीगढ़ के ही रहने वाले अगर हैं तो, या फिर जो स्टूडेंट्स अलीगढ़ आए हैं तो कोई, या आप अपने घरों के आसपास जो भी सब स्टेशन देखते हैं उसके ऊपर आप देखिए क्या रेटिंग लिखी हुई है। समटाइम्स इट इज रिटन एज लाइक दिस 11 kV by 440 वोल्ट। ठीक है, या समटाइम्स इट इज रिटन लाइक दिस, सब स्टेशन की बात कर रहा हूं 33 kV by 11 kV। यानी वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। तो वो ट्रांसफॉर्मर कैसे हैं, वो ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं कि दे आर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज फ्रॉम 33,000 वोल्ट्स टू 11,000 वोल्ट्स। ठीक है, एंड सेकेंडली सिमिलरली वी आर हैविंग स्टेप अप वोल्टेजेस जहां पे जनरेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जैसे फॉर एग्जांपल thermal power plants या hydro power plants, that will discuss these power plants also in our final unit। तो वहां पे जो जनरेशन हो रहा होता है वो लोअर वोल्टेजेस पे हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल 11 kV पे होता है, 11,000 वोल्ट्स पे होता है, तो हम उसको क्या करते हैं हायर वोल्टेजेस पे इंक्रीज करते हैं, मतलब वोल्टेज को लेवल को हाई करते हैं।
What is the need of increasing this voltage? Question must arise. The reason is कि जब हम कोई पावर जनरेशन कर रहे हैं किसी यूनिट में या किसी भी पावर जनरेशन प्लांट पे, तो वहां दैट पावर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन सिंपल टर्म्स, राइट? तो अगर मैं एक ट्रांसफार्मर यूज करता हूं जो कि वोल्टेज हमारा हाई कर देगा, तो करंट क्या कर देगा? लो कर देगा, ठीक है? इफ आई एम फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ जनरेशन, एक जनरेटर है मेरे पास जो कि 11 किलो वोल्ट जनरेट करता है, और मैंने ट्रांसफार्मर यूज करके उसको 132 किलो वोल्ट पे कर दिया, तो क्या होगा? जितने टाइम्स ये वोल्टेज इंक्रीज हुआ है उतने टाइम्स करंट घट जाएगा। करंट घटने की वजह से हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का, ठीक है, दैट इज थ्रू द कंडक्टर्स ओनली, एंड वो कंडक्टर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होंगी सर के ऊपर से गुजरती है और उनका अपना रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉसेस विल रिड्यूस बिकॉज द आई स्क्वायर आर लॉसेस आर डिपेंडेंट ऑन द करंट्स दैट आर फ्लोइंग थ्रू दोस पाथ्स, ठीक है? तो हमने करंट की वैल्यू को डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अब लॉसेस उन ट्रांसमिशन लाइन में कम होंगे, ठीक है? We'll see much more details about these the levels of the voltage that जिसमें हम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसमिट कर रहे हैं in our final unit. So this is the very basic structure of the of our transformer. We are having an AC voltage over here, and we are having a winding on one side that is known as the primary winding, and another winding over here that is having another number of turns, and this is known as the secondary winding. अच्छा, अगर हम सोर्स यहां से उठा के यहां पे लगा दें और लोड को उठा के यहां पे लगा दें, तो ये प्राइमरी हो जाएगी और ये सेकेंडरी हो जाएगी, ओके? सो इफ वी गिव दिस alternating voltage over here, alternating current will be flowing like this in this path, and alternating flux will be produced in this magnetic circuit. This flux will link with this coil also, ठीक है? तो ये जो फ्लक्स जो इसमें बना और उसने लिंक किया इस कॉइल को, this flux is known as the mutual flux. This flux is known as the mutual flux, okay? और अब इसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम. अब फिर से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम सोचें तो क्या होगा? जब टाइम के साथ ही फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस सर्किट के अंदर. यहां पे प्लस होगा उसका और यहां पे माइनस होगा, ओके? इट विल प्रोड्यूस लेंज़स लॉ के अकॉर्डिंग, इट विल बी दिस वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द वोल्टेज, अपोज दिस कॉज ऑफ दिस, okay? Now this flux is linking, this is known as the mutual flux. अब चूंकि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो Ni है, N into I MMF है, वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए या फिर सारा का सारा फ्लक्स ही इससे लिंक कर जाए. देयर इज ऑल्सो पोर्शन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज नोन एज द लीकेज फ्लक्स. So leakage flux will be generated in this coil, जो कि that will not link with this secondary part. So there is always a leakage flux. Another thing, जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव माइनस प्लस और माइनस मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दूं, सर्किट क्लोज कर दूं, तो करंट will start flowing. When current will start flowing through this coil, what will happen? It will generate its own magnetic field, और उस मैग्नेटिक फील्ड ये मतलब म्यूचुअल फ्लक्स ही होगा, और जो लीकेज फ्लक्स होगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी अगेन नॉट लिंकिंग विद अनदर कॉइल. सो इस सर्किट का भी लीकेज फ्लक्स है और इस सर्किट का भी लीकेज फ्लक्स होगा. दैट इज नॉट लिंकिंग विद, दैट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस म्यूचुअल पाथ, ठीक है? सो वी आर हैविंग टू कॉइल्स दैट इज नोन एज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है? और इनका नंबर ऑफ टर्न्स या तो बराबर भी रख सकते हैं या अलग भी रख सकते हैं. अगर बराबर है तो क्या होगा? अगर ये बराबर है तो जितना वोल्टेज यहां पे होगा उतना ही वोल्टेज यहां पे होगा. बराबर वोल्टेज दोनों तरफ प्रोड्यूस होगा. सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट किसके लिए इस्तेमाल होगा? आइसोलेशन के लिए. अभी तो मैंने डिस्कशन जो किया उसमें क्या हुआ? आइसोलेशन भी हो रहा है प्लस वोल्टेज लेवल भी डिफरेंट कर रहे हैं दोनों तरफ, ओके? So what is leakage flux? It is that flux which does not links with the other coil, but instead gets waste in the air.
Mutual flux, yeah, it is that flux which links with the other coil. It is that flux which is in actual use for the transfer of energy between primary and secondary. ठीक है? This we can understand in simple terms. As shown in the above figure, a transformer is constructed using laminated cores. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो जिस पार्ट के अंदर हमने फ्लक्स बनाया है, that is what material? Recall it, जैसे हमने पहले पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. एंड आप लोगों ने असाइनमेंट भी बनाया है, उसके अंदर क्या था कि वी यूज in order to reduce the eddy current losses, we divide the whole magnetic circuit into laminations. तो ये देखिए laminations है और ये laminations आपस में stamped है. ठीक है? This causes shorter paths for the eddy currents. ठीक है? So now two coils having N1 turns and N2 turns are wound on each side of the core. They are named as primary and secondary windings. ठीक है? अब ये देखो हमने तो ये बेसिक सर्किट देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए बनाया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, what the transformers, how a single phase, for example single phase transformers are made. There are two type of constructions, okay, that we are going to see in winding details. Okay, so the primary side becomes the source and the secondary side receives the electrical energy. ठीक है? And induce होता है उसमें voltage and it is used to feed the load. The primary and secondary windings are made up of copper and aluminum conductors. ठीक है? The windings that are made of copper or aluminum. ठीक है? Most of the times it is copper because copper is better conductor of electricity. Now talking about the core, इस कोर की बात कर रहे हैं. Actually what type of construction is this? Normally हम ये वाला construction use नहीं कर रहे होते हैं. We can use this construction also. ट्रांसफार्मर काम करेगा, लेकिन यहाँ पे लीकेज ज्यादा होगा. ठीक है? We want that the leakage must be minimum. ठीक है? तो पहला जो कंस्ट्रक्शन है, पहला टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, दैट इज, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स यूज करते हैं. एंड उनकी थिकनेस जो होती है 3.35 mm होती है, और क्योंकि देयर इज अ लिमिट ऑन द थिकनेस आल्सो, बिकॉज जितनी हम पतली स्ट्रिप्स करेंगे उतना ही महंगा हमारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, क्योंकि उसको कॉस्ट, पतला करने की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी. राइट? लैमिनेशंस को पतला करने के में कॉस्ट इंकर होगी. सो देयर शुड बी सम ऑप्टिमम पॉइंट up to which we should reduce the width of the lamination. Okay, ideally क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. राइट? सो हमारे पास दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट इज द कोर टाइप एंड द शेल टाइप. ठीक है? तो कोर टाइप में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को एक दूसरे पर माउंट करते हैं. ठीक है? इसका पिक्चरिस्टिक व्यू मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको. इसमें अंतर देखिए, इसके अंदर दोनों तरफ है. ठीक है? ये ऐसा समझिए, ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है. ओके, और ये जो अंदर वाइंडिंग है, ये लिपटी हुई है इस लिंब के ऊपर. ठीक है? इस लिंब के ऊपर लिपटी हुई है. और ये हाई वोल्टेज, और करते क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रखते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऊपर से लपेटते हैं. अब इस लो वोल्टेज वाइंडिंग और इसके अंदर, इसके बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसुलेशन देंगे, ताकि करंट इसके अंदर, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग आयरन का ही है ना, तो इट शुड नॉट शॉर्ट. ठीक है? अगेन लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में हमारे पास एक और इंसुलेशन हम देंगे. ओके, फिर ऊपर हम इंसुलेशन देंगे, नीचे इंसुलेशन देंगे. ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग, एक यहां पे बांध लपेटा लो वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज लपेटा, इधर उसके ऊपर हाई वोल्टेज, इसके ऊपर हाई वोल्टेज. सो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कोर टाइप. यहां पे हमने क्या किया है, ठीक है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. ठीक है?
अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन था। इस टाइप का ये आप सामने ऐसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। यू आर जस्ट व्यूइंग फ्रॉम फ्रंट, वी आर नॉट व्यूइंग दिस थिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। देखो टॉप में देखो आप हल्के हल्के लैमिनेशंस भी नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, राइट। या तो ये कंस्ट्रक्शन है, और इस कंस्ट्रक्शन के हमने पहले इसके ऊपर हमने क्या किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटी, और ऐसे ही सिमिलरली यहां पे भी लो वोल्टेज। अब कहीं ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर हम इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग आएगी लाइक दिस, उसके ऊपर लपटेगी, ठीक है, लिपटेगी। सिमिलरली वी विल कनेक्ट दीज, आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। दिस विल फॉर्म हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये रफ हो गया ये। नाउ द थिंग इज दैट ये क्या है, व्हाट इज दिस। इसमें हमने क्या किया है, वी हैव माउंटेड दिस ऑन अ सेंट्रल लिम्ब, एक ही लिम्ब पे हमने किया है। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इट लाइक दिस, practically what happens is we are having स्टैंपिंग्स जो अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर, ई टाइप और आई टाइप, ठीक है। तो आई टाइप और ई टाइप की स्टैंपिंग्स को हम यूज करते हैं, और क्या करते हैं कि सेंटर पे पहले हम लो वोल्टेज वाइंडिंग डालेंगे, और फिर उसके ऊपर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटेंगे, राइट। तो यहां पे देखो आउटसाइड दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज द इंसुलेशन, ठीक है। सो दिस बिकम्स द हाई वोल्टेज वाइंडिंग दैट इज ऑन द आउटसाइड, और जो अंदर है दैट बिकम्स द लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू inculcate in you, ठीक है। तो based on the stampings that are available in the market, we create our own transformers, ठीक है। लेकिन इस केस में फ्लक्स ऐसे डिवाइड होगा जैसे हमने पहले मैग्नेटिक सर्किट में दिखाया था, ठीक है। नाउ दिस इज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखो इसके कंस्ट्रक्शन में और इसके कंस्ट्रक्शन में तकरीबन सिमिलैरिटी नजर आ रही है, राइट। लेकिन ये स्टिल दिस इज कोर टाइप। क्यों? क्योंकि हमने कोर पे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, शेल टाइप में हम बेसिकली शेल्स बनाते हैं, ठीक है। शेल मींस व्हाट, पहले थोड़ी सी लो वोल्टेज वाइंडिंग आएगी, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग आएगी, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। अब मैं स्टैंपिंग्स नहीं बना रहा हूं, आपके दिमाग में स्टैंपिंग्स आ जानी चाहिए। दिस पोर्शन इस टाइप से कुछ पोर्शन था, राइट। ये आई टाइप था, ये ई टाइप की स्टैंपिंग थी जो आपस में जोड़ी गई है, स्टैंपिंग की गई है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर पहले मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाता हूं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे थोड़ी सी लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई, फिर उसके बाद फिर मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटूंगा, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटूंगा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सो एंड सो फोर्थ। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है। So this type of winding or this type of core basically, if we are using, or this type of winding basically is known as the shell type winding or shell type transformer, based on the core, or we can say based on the transformer windings. कभी कभी इसको सैंडविच वाइंडिंग भी कहा जाता है या डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे अब आप कहेंगे कि यहाँ पे टॉपिक जो था वो कोर टाइप था, ट्रांसफार्मर कोर किस टाइप का है।
actually it should be this talk is basically about the windings कैसे हमने place की है. Okay, in the next video we'll see the principle of transformer operation.